Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that in the last class we have started the topic that is demonetization. So it is the topic, this topic is related to the chapter 3 of your Indian economy development, liberalization, privatization and globalization. And when we were studying that chapter, we have skipped this topic as well as GST. So in the last class, from the last class, we have started to discuss about the demonetization. Okay. So in this chapter, demonetization, we have already discussed about the meaning of the demonetization. Next, we have discussed the aims and objectives of the demonetization, and we have started the topic that is features of the demonetization. So simply when we talk about the what is demonetization, so it is an act to seize a currency unit or the stop the official or to put an official stop on its status as a legal tender. Simply it is an act to seize a currency to be used as a legal tender. Okay, so in November 8 2016 the government announced that the note of the 500 and 1000 is not treated as a legal tender. So this is the demonetization, as I am giving the homework to you all that how many times India has faced the demonetization. So we will discuss it in the online classes. So next topic that is we have discussed about, that is aims and objectives of the demonetization. So the first one is it is to curb the inflation, to control the counterfeiting, to stop use of currency as a legal for the legal activities, and the last one is to stop accumulation of the black money and the bringing it back to the economy. Okay, and we have started the topic that is features of the demonetization, and in the last class we have already discussed about the that is measures of the tax administration. So in today's class we are going to discuss with the others features, that is control on the black money, credit creation and the cashless economy. Okay, so when we talk about the control on the black money, तो आपको पता है कि जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो ब्लैक मनी पे क्या हुआ था, वो ब्लैक मनी एकदम उस पर कंट्रोल कर लिया गया. क्यों कर लिया गया? बिकॉज अब क्या था कि जो भी मनी था उसको हम लोग एज अ, क्योंकि हायर डिनोमिनेशन की जो वैल्यू मनी होते हैं वही ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, अब इससे क्या है कि ये ब्लैक मनी एकदम ही अब इट्स नॉट टॉलरेटेड बाय एनी इंडिविजुअल और द पब्लिक ऑफ द कंट्री और द इकोनॉमी, कि अब ब्लैक मनी को कोई भी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था और कोई भी मनी एज अ ब्लैक मनी की तरह टॉलरेट नहीं किया जा रहा था, और अब उस ब्लैक मनी को धीरे धीरे उसको कम करना पड़ा था. क्योंकि ये जब हुआ ब्लैक मनी, तो उस पर ब्लैक मनी को लोग ट्राई क्या कर रहे थे, वाइट मनी में बनाने में. वाइट मनी बनाने के लिए दे हैव टू गो टू दी बैंक. अब अगर वो मनी को बैंक में लेकर जाते हैं देन बैंक विल आस्क अबाउट दिस फ्रॉम वेयर यू जनरेटेड दिस मनी. सो दिस विल create so many problems for the any bureaucrat, any individual. That's why in that case, when the introduction of the demonetization was happened, so there is too much control on the black money. Next topic is that is credit creation. So as we already discussed in the chapter of your macroeconomics banking, so the main purpose or the main function of the commercial bank is the credit creation. So when demonetization was happened, so the people will go to the bank and they deposit more and more money. And you know very well, any commercial bank create money is with the help of the deposit. And when they have deposit, they can reserve some money as a reserve, as well as after that money they can give to as a loan. So in that case, when there is demonetization happened, so more and more credit creation were done, because of the people are more focusing on the depositing their money in the bank. Next one is that is cashless economy.
So when we talk about the cashless economy, so with the large denomination eliminated, household and firms have begun to shift from cash to electronic payment technologies. Okay, जब जो ये लार्ज डिनोमिनेशन के मनी थे वो एलिमिनेट हो गए, लाइक ₹500 एंड ₹1000 की नोट्स क्या हो गई थी, जब एलिमिनेट हो गई थी तो जो भी पीपल थे, हाउस होल्ड हो गया या फर्म सेक्टर हो गया, दे आर प्रेफरिंग टू बी हैव अ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, दे मोर प्रेफर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, क्योंकि अब लार्ज डिनोमिनेशन क्या हो गया था, वो कैंसिल हो गया था, मतलब अब उसको एलिमिनेट कर दिया गया था. ओके, सो क्रिएटिंग अ कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी, जिससे क्या हो रहा था, कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी की बात हुई. ठीक है, सो दे रिक्वायर स्पेशल. अब इसके लिए आपको पता है कि अब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए स्पेशल काइंड ऑफ क्या चाहिए आपको, एक इक्विपमेंट भी चाहिए. ठीक है, सो सेल फोन्स, या तो उसके लिए सेल फोन्स हो, और कस्टमर एंड पॉइंट ऑफ सेल, वो जो सेल फोन्स हो वो कस्टमर्स के लिए हो, और एक टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल. आप देखे होंगे जिसको शॉर्ट में POS बोलते हैं. आप देखे होंगे कि जब आप लोग शॉप पे जाते हो, वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं थ्रू विच वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करते हैं. उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्केल. सो मशीन्स फॉर द मर्चेंट, जो भी ट्रेडर्स हो गया उनके पास ये मशीन होती है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल. सो विच डिपेंड ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो टोटली डिपेंड किस पे करता है, उनके इंटरनेट कनेक्टिविटी पे. ऐसा नहीं कि विदाउट इंटरनेट दे कैन यूज इट, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए. अब कोई भी कस्टमर के पास क्या होता है, उसका अपना फ़ोन होता है जिससे वो पेमेंट करता है. ठीक है, और स्कैन कर देता है ना, फिर इसके अलावा क्या है कि वो ट्रांसफ़र कर देता है. और किसी भी मर्चेंट के पास, ट्रेडर्स के पास, जो भी शॉप पे जाते हैं हम लोग, उसके पास पॉइंट ऑफ स्केल मशीन्स होती है जिसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है. डिजिटल ट्रांजेक्शन हेल्प ब्रिंग पीपल इनटू अ मॉडर्न वायर्ड एरा. अब जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो पीपल को क्या है, एक मॉडर्न वायर्ड एरा में, मतलब वायर्ड के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं. एंड दे ब्रिंग पीपल इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, ये पीपल को एक फॉर्मल इकोनॉमी की ओर लेके जा रहा है. देयर बाय इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सेविंग, रेड्यूसिंग टैक्स इवेजन. इससे क्या हो रहा है, जो फाइनेंशियल सेविंग है वो इंक्रीज हो रहा है, टैक्स इवेजन रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि पहले टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा हो रहा था, अब टैक्स इवेजन रिड्यूस हो रहा है. द प्लेइंग फील्ड बिटवीन द टैक्स कॉम्प्लायंट एंड टैक्स इवेडिंग फर्म्स. ठीक है, अब एक जो गेम, मतलब एक गेम की बात ये कर रहा है, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड बिटवीन जो टैक्स कंप्लायंट है, टैक्स इवेडिंग फर्म्स है, जो टैक्स को पे करते हैं और जो टैक्स को चोरी करते हैं, उनके बीच में एक, जो लोग पहले ऐसे ही कर लेते थे, अब ये सारी चीज़ों को बंद हो गया. ठीक है, अब बात आ रही है, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन. इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन. कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ. ओके, सो इसमें कह रहा है कि ऐसे सेक्टर्स और इम्पैक्ट किस पे हुआ, इफेक्ट थ्रू फ्रॉम दिसंबर 2016 एंड लाइकली लॉन्ग टर्म इफेक्ट. इसमें सेक्टर्स दे रहा है, किस किस सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट हुआ और इफेक्ट इसका थ्रू हुआ दिसंबर 2016 एंड
लॉन्गर टर्म इफेक्ट, उसका लॉन्गर टर्म इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला सेक्टर दे रहा है दैट इज मनी और इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सो कैश डिक्लाइंड शार्पली, इसमें सबसे पहला इफेक्ट थ्रू दिसंबर 2016 में इसका ये हुआ कि जो कैश था वो बहुत तेजी से गिरा, मतलब डिक्लाइन हुआ, एंड बैंक डिपॉजिट इंक्रीज शार्पली, और जो बैंक में डिपॉजिट था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि लोग अपना मनी लेके जा रहे थे। लॉन्गर टर्म इफेक्ट इसका देखते हैं, तो कैश विल रिकवर बट सेटल एट अ लोअर लेवल, कैश रिकवर हुआ एंड डिपॉजिट विल डिक्लाइन बट प्रोबेबली सेटल अ हायर, स्लाइटली हायर लेवल। बाद में जब लॉन्गर इफेक्ट देखा जा रहा है तो डिपॉजिट क्या हुई थी, डिक्लाइन हुई थी, बट प्रोबेबली सेटल एट अ स्लाइटली हायर लेवल, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, लोन एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिक्लाइन, जो भी इंटरेस्ट रेट्स था वो डिक्लाइन हुआ। इम्प्लिसिट रेट ऑन द कैश इंक्रीज, जो भी रेट था वो भी इंक्रीज हुआ। लॉन्गर टर्म इफेक्ट देखते हैं, तो लोन रेट कुड फॉल फर्दर, क्योंकि जब मनी ज़्यादा हो गया तो लोगों को जो लोन का जो रेट था वो भी फॉल हो गया। इफ मच ऑफ देयर डिपॉजिट इंक्रीज प्रूव्स ड्यूरेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट है दैट इज फाइनेंशियल सेविंग्स की। जब हम लोग सेविंग्स की बात करते हैं तो वो क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, दोनों ही केस में। क्योंकि सेविंग अब लोगों की इंक्रीज हो गई थी, लोग सेव ज़्यादा कर रहे थे। थर्ड है दैट इज ब्लैक मनी, ठीक है, और अनअकाउंटेड इनकम जिसको बोलते हैं। तो ब्लैक मनी क्या होता है, स्टॉक ऑफ ब्लैक मनी फेल हो गया था, इसमें जो स्टॉक था वो फॉल कर गया था, और फॉर्मलाइजेशन शुड रिड्यूस द फ्लो ऑफ अनअकाउंटेड इनकम। जो भी फॉर्मलाइजेशन इतना हुआ था, फॉर्मल इकोनॉमी की ओर बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें ये जो वैल्यू था अनअकाउंटेड इनकम वो फॉल करता चला जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज प्राइवेट वेल्थ। प्राइवेट वेल्थ की बात जब हम लोग करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर वेल्थ डिक्लाइन, जो प्राइवेट सेक्टर का वेल्थ था वो डिक्लाइन किया, सिंस सम हायर डिनोमिनेशन नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस फेल, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर वेल्थ था, प्राइवेट सेक्टर में जो मनी हो रहा था वो फेल किया, फॉल किया। सम डिनोमिनेशन नोट्स वर नॉट रिटर्न, बहुत सारी जो डिनोमिनेशन की नोट्स थी उसको वापस नहीं किया गया, और जो स्टेट की जो भी प्राइस थी, रियल एस्टेट प्राइस, मतलब कि जो लैंड से रिलेटेड रियल एस्टेट उसी को बोलते हैं, उसको परचेज करना, सेल करना, उसकी भी प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर रही थी, ठीक है। फिर अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो सम रिटर्न टू कैश एज सप्लाई नॉर्मलाइज बट द नाउ लॉन्च डिजिटल रिवॉल्यूशन विल कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट है वही रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब जो भी लैंड से रिलेटेड लोग उसको क्या करते हैं, लैंड को परचेज और सेल करना, उसको रियल एस्टेट बोलते हैं। तो फिफ्थ है रियल एस्टेट। तो इसकी प्राइस क्या हो गई थी, वो डिक्लाइन कर रही थी एज वेल्थ फेल। इसकी भी प्राइस क्या कर रही थी, प्राइस फॉल कर गई थी एज वेल्थ फेल वाइल कैश शॉर्टेज इम्पीडेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। जो वेल्थ था वो फॉल कर गया था और इसका ट्रांजेक्शन भी कम हो गया था। प्राइस कुड फॉल फर्दर एज इन्वेस्टिंग अनडिक्लेयर्ड इनकम इन रियल एस्टेट बिकम मोर डिफिकल्ट। प्राइस फॉल करती चली जाती क्योंकि अब कोई भी रियल एस्टेट में नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है दैट इज ब्रॉडर इकोनॉमी। फिफ्थ था आपका रियल एस्टेट, सिक्स्थ इज ब्रॉडर इकोनॉमी, seventh one is tax collection, eighth is GDP, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं ब्रॉडर इकोनॉमी की, तो ब्रॉडर इकोनॉमी में क्या है, जॉब लूजेस, जॉब चली गई थी लोगों की, डिक्लाइन इन फार्म्स की जो इनकम थी, जो भी फार्म थे, जो भी फार्म प्रोडक्ट होते थे वो भी डिक्लाइन, सोशल डिस्ट्रप्शन हो गया था स्पेशली इन दी कैश इंटेंसिव सेक्टर में। फिर अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं तो शुड ग्रेजुअली स्टेबलाइज एज द इकोनॉमी इज डीमोनेटाइज्ड। नेक्स्ट है टैक्स कलेक्शन। तो अब आपको पता है कि टैक्स कलेक्शन तो हुआ ही होगा, वो इंक्रीज कर गया।
अब लॉन्ग रन में देखते हैं, ओवर लॉन्ग रन टैक्स शुड बी इंक्रीज एज फॉर्मलाइजेशन एक्सपैंड एंड कंप्लायंसेस इम्प्रूव्स, ठीक है, बढ़ा। जीडीपी की बात करते हैं, देखिए आपको पता होगा जीडीपी में, जीडीपी की वजह, जीडीपी में डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, ग्रोथ शोड एज डिमोनेटाइजेशन रिड्यूस डिमांड, डिमांड लोगों की कम हो गई थी, क्यों, क्योंकि प्राइवेट वेल्थ किसी के पास नहीं था, कैश नहीं बचा था, एंड सप्लाई भी रिड्यूस हो गई थी, एंड इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी, उससे अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो गई। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करते हैं, कुड बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन, ये बेनिफिशियल था लॉन्ग रन के लिए, इफ फॉर्मलाइजेशन इंक्रीजेज एंड करप्शन फॉल्स, जब फॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मल थ्रू अगर काम होगा तो वो अगर अच्छे से होगा वो इंक्रीज करेगा, और करप्शन अगर फॉल करेगा तो जीडीपी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द डिमोनेटाइजेशन, जिसको प्रॉज एंड कॉन्स भी बोलते हैं। Topic is so the topic is here pros and cons of demonetization. Cons of demonetization. Pros means उसके merits, cons means demerits. So इधर हम लोग पढ़ेंगे इसके pros, here cons. So first one is that is it abolishes black money. Abolishes black money. Second, strengthen Indian banking system. Strengthen Indian banking system. Third is higher tax collection. Higher tax collection. Fourth is price cut in real estate. Fifth one is corruption control. आप इसमें से सारे अगर पॉइंट देखोगे तो आपको पता है ये सारी चीजें हम लोग ने पहले पढ़ ली है, कोई इसमें नया नहीं है। सिक्स्थ वन इज कैशलेस इकोनॉमी। Okay, so these all are the pros, that is merits of the demonetization, and this one is demerits. So demerits भी हम लोग देख लेते हैं। That is first one is adverse impact on primary producer and informal sector. Adverse impact on primary producers and informal sector.
Second one is excessive burden on bank employee. Excessive burden on bank employee. Third is decrease in demand. Fourth is higher cost of printing new currency. Higher cost of printing the new currency. Fifth one is could not target the entire black money. Could not target the entire black. Okay, so these all are the some merit and demerits of the demonetization, right? So पहला हम लोग देखिए इसमें क्या क्या है, प्रॉज और मेरिट्स हैं. पहला abolishes black money. ठीक है. सो आप जानते हो कि दिस स्टेप बाय द गवर्नमेंट एबॉलिशेस द ब्लैक मनी. ये जो गवर्नमेंट का स्टेप था उसके थ्रू ब्लैक मनी क्या हुआ, एबॉलिश हुआ फ्रॉम द इकोनॉमी से, एज द होल्डर वर इन पोजीशन टू डिपॉजिट द सेम इन द बैंक. बिकॉज होल्डर पोजीशन में था कि उसको वही मनी बैंक में डिपॉजिट करना है. सेकेंड वन इज strengthen the Indian banking system. So this step led to more amount being deposited in the saving and the current account. इससे क्या हुआ कि more amount जो है वो डिपॉजिट किस में हुआ, सेविंग और करंट अकाउंट में. एंड दिस enhanced the liquidity position of the bank. और ये क्या किया, जो भी बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन थी, फंड की जो पोजीशन थी, मनी की जो पोजीशन थी, उसको इन्हांस किया, विच कुड बी यूटिलाइज फर्दर फॉर द लेंडिंग पर्पज. जो आगे क्या है वो लेंडिंग पर्पज के लिए वो यूज़ किया जा सकता है. तो बैंकिंग सिस्टम में भी डिपॉजिट बढ़ी तो बैंक भी क्रेडिट क्रिएशन करने लगा, तो मनी मल्टीप्लाई की वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन था वो भी इंक्रीज हो रहा था. थर्ड वन इज दैट इज हायर टैक्स कलेक्शन. सो द इनिशिएटिव लेड टू द हायर टैक्स कलेक्शन एज सम businessmen were depositing cash lying with them as current year's income with the advance tax and tax evasion could also be checked. ठीक है, जो इनिशिएटिव लिया गया था हायर टैक्स कलेक्शन का, तो जो सम बिजनेसमैन थे, कुछ बिजनेसमैन वर डिपॉजिटिंग कैश लाइंग विद देम, जो भी उनके पास कैश था वो उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे एज करंट ईयर इनकम, जो भी उनकी करंट ईयर इनकम थी, विद द एडवांस टैक्स, टैक्स को एडवांस में पे कर रहे थे, एंड टैक्स इवेजन कुड ऑल्सो बी चेक. और जो टैक्स इवेजन था वो भी इसको भी चेक किया जा रहा था. गवर्नमेंट कुड यूज दिस टैक्स रेवेन्यू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. अब गवर्नमेंट को जो ये टैक्स का कलेक्शन हो रहा था, अब बैंक इस मनी को क्या कर रही थी, आगे डेवलपमेंट के लिए, इन इकोनॉमी के, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उस मनी को, क्योंकि टैक्स क्या है, एक गवर्नमेंट का सोर्स है रेवेन्यू का, ठीक है, उस मनी को गवर्नमेंट यूज करे. नेक्स्ट वन इज दैट इज प्राइस कट इन रियल एस्टेट. दैट इज fourth point. So it is general observation that the hype in real estate prices is because of the circulation of the black money in the market. ठीक है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन था कि जो हाइप था रियल एस्टेट प्राइसेस ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द जो रियल एस्टेट प्राइस, जो प्राइस थी, जो लैंडिंग का लोग काम करते उसकी प्राइस राइज क्यों करी थी, बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लैक मनी. ब्लैक मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा था. इन द रियल एस्टेट एक्सपीरियंस प्राइस कट बिकॉज ऑफ द चेक ऑन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन द सेक्टर. अब जो रियल एस्टेट की प्राइस थी वो फॉल करती जा रही थी. क्यों कर रही थी, बिकॉज अब एक रेगुलर इंटरवल पे ये ब्लैक मनी को चेक किया जा रहा था, तो इसलिए वो जो प्राइस थी वो फॉल कर रही थी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज करप्शन कंट्रोल. एकदम एज यूजुअल आपका वही है कि दिस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल करप्शन टू सम एक्सटेंट. कुछ एक्सटेंट तक करप्शन में क्या हुआ था, कंट्रोल हुआ था. फॉर कंसिडरेबल टाइम पीरियड विच इन रिटर्न अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स.
ठीक है, जिससे क्या हुआ, कुछ टाइम पीरियड बाद जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स थे उनको भी अट्रैक्ट किया टू इंडिया मार्केट, कि वो इंडियन मार्केट में भी क्या करें, इन्वेस्ट करें. सो इफ दिस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट इज एबल टू कर्ब प्रिवेलिंग करप्शन एंड रेड टेपिज्म. ठीक है, अब इससे क्या था, ये इनिशिएटिव लेना गवर्नमेंट का, वो जो भी करप्शन था उसको कम करा था, जो रेड टैपिज्म की बात है वो भी कम हो रहा था, कि पावर क्या है कुछ लोगों के पास थी, ब्यूरोक्रेट्स को वो कम कर रहा था. इंडियन मार्केट बीइंग द प्रेफरेबल मार्केट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो इंडियन मार्केट था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफरेबल हो गया था. एंड विल ऑब्जर्व इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था. लास्ट वन इज दैट इज कैशलेस इकॉनमी. क्या है, कैशलेस इकॉनमी की बात करते हैं हम. सो दिस ड्राइव टारगेटेड द इंडियन इकॉनमी टू बिकम द कैशलेस इकॉनमी. कैशलेस इकॉनमी हो गई इंडिया, एंड द गवर्नमेंट सक्सीडेड इन इनकरेजिंग पीपल टू यूज डिजिटल मीन्स फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन. और गवर्नमेंट बेसिकली पब्लिक को इनकरेज कर रही थी कि वो डिजिटल पेमेंट का यूज करे फॉर देयर ट्रांजेक्शन, राइट. सो दिस इज ऑल योर advantages, merit and pros of the demonetization. Next one is that is cons, demerit or the disadvantages. Okay, so first one is that is adverse impact on the primary producers and informal sector. So producer in the primary sector and informal sector face tough times as they mainly deal in cash transaction. ठीक है, अब आपको पता है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मॉल लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उसको डिमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत फेस करना पड़ा, क्योंकि वो लोग हमेशा कैश ट्रांजेक्शन करते थे. अब उसके लिए पहले उनको मनी को चेंज करेंगे तभी तो यूज़ करेंगे, और बैंक में पास जाए तो बहुत लंबा लाइन, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन लोगों को सबसे ज़्यादा सफ़र किए. एंड ड्यू टू लैक ऑफ करेंसी इनफ्लो दे वर ऑफर्ड लेस प्राइस बाय द बायर्स. अब इकॉनमी में करेंसी का जो फ्लो था वो बहुत कम था, तो बायर भी उनको बहुत कम अमाउंट में पैसे दे रहे थे. लैक ऑफ नॉलेज ऑफ यूजिंग डिजिटल कैश बोथ बाय द सम बायर एंड सेलर फर्दर पुट देयर बिजनेस ऑन अ डोरमेंट फेज. अब उस टाइम लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि दे कैन डील विद दी, दे कैन डू दी पेमेंट इन दी डिजिटली, दे कैन डू, बट उनके पास इतनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, लैक ऑफ नॉलेज थी. इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक बैकवर्ड सिचुएशन में उन लोग को ला गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस भी सफ़र किया. सेकेंड वन इज दैट इज एक्सेसिव बर्डन ऑन दी बैंक एम्प्लॉय. अब आपको पता ही है, देखिए बैंकिंग सिस्टम इज स्ट्रेंथन हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो बर्डन जो बैंक एम्प्लॉय पे ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग मनी को एक्सचेंज करने आ रहे हैं, अपनी करेंसी को 500-1000 को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बैंक में बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ थे उनके पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया. ठीक है, सो लिमिटेड टाइम पीरियड में उनको सारे लोग क्या थे, बैंक में जाके मनी को एक्सचेंज करते थे. द एम्प्लॉयज़ वर इन्वॉल्व इन मल्टीटास्किंग दैट इन्वॉल्व चेकिंग फॉर्म, उनको मल्टीटास्किंग बनना पड़ा, वो फॉर्म को चेक कर रहे हैं, आइडेंटिटी प्रूफ को देख रहे हैं, वेरिसिटी ऑफ द ओल्ड नोट्स एंड देन गिविंग बैक इन एक्सचेंज. अब वो पुरानी नोट्स को ले रहे हैं, न्यू नोट्स को दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन कर दिया था किस पे, बैंक एम्प्लॉय पे. नेक्स्ट वन इज दैट इज डिक्रीज इन डिमांड. सो दिस ड्राइव लेड टू फॉल इन डिमांड इन दो सेक्टर वेयर ब्लैक इकोनॉमी सपोर्ट्स रियल इकोनॉमी. ठीक है, अब यहाँ पे फॉल इन डिमांड हो गया किस चीज़ में, जहाँ पे ब्लैक मनी ज़्यादा उनका एक्सचेंज हो रहा था, तो उन सारी चीज़ों की डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी. एंड देयर वाज फॉल इन डिमांड एज होल्डर्स ऑफ द ब्लैक मनी डिमांडेड लेस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि जो फॉल इन डिमांड ऑफ दी दोज गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे ब्लैक मनी होल्डर्स उनका ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते थे. देयर वाज फॉल इन डिमांड एज होल्डर्स ऑफ द ब्लैक मनी डिमांडेड, क्योंकि ब्लैक मनी होल्डर जो थे वो लेस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड कर रहे हैं. फोर्थ वन इज दैट इज हायर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी. अब 500 और 1000 नोट अगर एज अ लीगल टेंडर नहीं है तो उसकी जगह पे न्यू करेंसी को इशू किया जाएगा, और बहुत शॉर्ट टाइम पे करना है, तो उसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था फॉर प्रिंटिंग द न्यू करेंसी.
So destruction of the old currency notes and the printing of the new currency units involve huge cost. उसमें बहुत ज़्यादा cost incur हुआ, which had to be borne by the government. जो government को ही पूरा देना पड़ रहा था क्योंकि government के ही through ये सारी चीज़ें हो रही थी. Next one is that is could not target the entire black money. अब ये पूरे black money को target नहीं कर पाए. इसमें भी बहुत सारे लोग क्या कर लिए, money को evade कर भी लिए. This move did target the black money, but the many people who had kept cash at their black money and had held it in the other assets like real estate, gold were not affected by the demonetization. जैसे लोग बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में मतलब बहुत सारे फ्लैट्स ले लेना, अपने बहुत सारा लैंड ले लेना, वो सारे का जो ये काम कर रहा था, और जो अपनी करेंसी को ब्लैक मनी ब्लैक करेंसी को वो क्या कर रहे थे, गोल्ड में ट्रांसफ़र कर ले रहे थे. तो ये सारे लोग, बहुत सारे लोग भी इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से प्रोटेक्ट भी हो गए. तो ये जो डिमोनेटाइजेशन था वो सबको कवर नहीं कर पाया, पूरी इकॉनमी को टारगेट नहीं कर पाया, बिकॉज जो कुछ पीपल क्या है, दे आर सो क्लेवर, वो अपना ऑटोमेटिकली सारे को अपने रियल एस्टेट में, अपने गोल्ड में, ये सारे जो भी है डिफरेंट, उनमें क्या कर लिए थे, एक्सचेंज कर लिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिमोनेटाइजेशन. सो इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, मीनिंग देखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स और एम देखे, फीचर्स देखे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डिमोनेटाइजेशन. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द गुड्स एंड सर्विसेज.